Thank God for we heard today. हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। We heard about the verse where Jesus says in Matthew 16:24, if anyone wishes to come after me, he must deny himself, take up his cross, and then follow me. Brother, which verse? Matthew 16:24, which was read above. और जब हमने अभी मत्ती 16:24 में पढ़ा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपने क्रूस को उठाए और मेरे पीछे आए। Three conditions, like two conditions are prior following. One is denying himself, denying my own self, और यहाँ and then taking up my cross. और यहाँ कुछ शर्त है, एक तो अपने आप का इनकार करना और फिर अपने क्रूस को उठाना। Jesus didn't say like just follow me, but he said you should deny yourself, take up your cross and then follow me. यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे पीछे आ जाओ, उसने कहा पहले अपने आप का इनकार करो, अपने क्रूस को उठाओ, फिर मेरे पीछे आओ। I've listened to this verse so many, might be thousands of lakhs of times in the last 30 years. और इस वचन को कई बार मैंने पिछले 30 वर्षों में सुना है। But it's really, it's a day-to-day situation where I really I judge myself and see, God, am I really taking up my cross? It's not just one day taking a cross, but it's daily taking up my cross. और मैं दिन प्रतिदिन अपने आप को परख कर देखता हूँ कि क्या मैं हर दिन अपने क्रूस को उठा रहा हूँ, और क्या मैं, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन मैं अपने क्रूस को उठाऊं, पर मुझे वो प्रतिदिन करना है। When Jesus says, we learn from me. और जैसे यीशु ने कहा हमें उससे सीखना है। The first and foremost thing when Jesus said, he stepped down. He was a son, but he stepped down and became a human being. और जैसे हम यीशु से सीखते हैं, सबसे पहले जो उसने किया वो परमेश्वर का पुत्र था, पर वो वहां से नीचे आकर एक मनुष्य बन गया। He didn't see that I was son of God. He had total liberty, what he wanted to be. He could have come and done miracles. That could have been sitting on the throne of a king and all that. But he didn't do that. और वो परमेश्वर का पुत्र था, वो नीचे आकर एक सिंहासन पर हो सकता था, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। And thing is, he came for a purpose to save me. और वो एक उद्देश्य से यहाँ आया था, वो उद्देश्य था मेरा उद्धार करने के लिए। So when it comes to my relation to Christ, when I learn from Christ, it's one thing I should learn is stepping down, not think that I'm something great, but but really learn from Christ about it. और जब मेरी बात आती है तो मुझे भी मसीह से सीखना है कि मैं नीचे जाना सीखूं, अपने आप को कोई महान न समझूं। When Jesus came, the most thing he came to serve. और जब यीशु आया तो वो सेवा करने के लिए आया था। If you read the verse from Matthew chapter 20, और हम मत्ती 20 में पढ़ते हैं, and it says from verse 25 to 28, it says, so Jesus called them to himself and said, you know that ruler of the Gentiles lord it over them, and the great men exercise authority over them. It is not this way among you, but whoever wishes to become great among you shall be a servant, and whoever wishes to be first among you shall be a slave. और जैसे मत्ती 20 उसके 25 से 27 में लिखा है, यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं, और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वो तुम्हारा दास बने। If you just read, I'm trying to do that with my thing, but when I read a verse, just think about why Jesus spoke those words, because he lived that way. और जब हम इस वचन को पढ़कर देखते हैं, अगर हम सोचे तो क्यों यीशु ने ये शब्द कहे, तो उसका कारण था क्योंकि पहले वो इन शब्दों को जिया था। He lived that way. He lived the spirit of service. वो इसी प्रकार जिया था, एक सेवा की आत्मा में वो जी रहा था। Think about a place where one person is going to betray you. Still, he is sitting there and he is washing his feet. एक परिस्थिति के विषय में सोचकर देखिए, जब आप जानते हो कोई व्यक्ति आपका विश्वासघात करने वाला है, आपको पकड़वाने वाला है, उसके बावजूद आप उसके पांव धोते हो। If somebody says something wrong to me, I'm so ready to wait and give it back to him.
जब कोई मुझसे कुछ गलत कहता है, मैं इतना तैयार होता हूँ कि मैं इंतजार करूं और सही समय पर उसे उलटकर कोई जवाब दूं। But no, God wants us to, like when Jesus says, "Learn from me," He wants me to come to that place where He is now. और जब यीशु कहता है कि मुझसे सीखो, तो यीशु चाहता है कि मैं उस जगह पर आऊं। Like where I can really be like Him. Like just not speak, like I want to follow you, Lord, and this and that. But He wants me to come there and be like Him. और जहां हम केवल शब्दों से नहीं कहते कि प्रभु मैं तेरे पीछे आता हूं, पर हम सचमुच वहां उसके पीछे चलना चाहते हैं। Like Jesus sometimes He says in the verse, you everybody calls me Lord, Lord, but your hearts are far away from me. और जैसे यीशु ने एक और जगह कहा कि तुम मुझे हे प्रभु कहते हो, पर तुम्हारे हृदय मुझसे बहुत दूर है। Why he says? Because the people just kept saying, but nobody practiced those things. What Jesus said. और उसने ये क्यों कहा? क्योंकि लोग उसको हे प्रभु कहते रहे, पर जो यीशु कहता था उसे वो उस पर अमल नहीं करते थे। Because I can be the same person who come to church every Sunday or Saturday, attend all the meetings. I also might read the Bible, but it's just like I come to a place where I just keep things in my mind, but I don't follow it. और मैं भी बिल्कुल इसी अवस्था में हो सकता हूँ कि मैं कलीसिया में आता हूँ, हर सभा में शनिवार को और रविवार को आता हूँ, मैं शायद अपने बाइबल को भी पढ़ता हूँ, पर मैं इन बातों को अमल नहीं करता। God wants us to do this when He say His children, when His children will practice what the Father teaches. सॉरी ब्रदर, कैन यू रिपीट? When God says we are His children, His Father will want His children to follow Him. जब परमेश्वर कहता है कि हम उसके बच्चे, उसके संतान है, तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसका अनुसरण करें, उसी के जैसे चले। The verse in John 13. यूहन्ना 13 में एक वचन है। 13 to 16 says, Jesus says, "You call me teacher and Lord, and you are right, who I am. If then the Lord and the teacher wash your feet, you also ought to wash one another's feet. For I gave you an example, and you should also do as I do for you." और यूहन्ना 13 से 15, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो। It's basic things. God really, it's like when I want to be in fellowship with God, I want to live like Christ. I should really learn to be like Him. और अगर मैं सचमुच परमेश्वर के साथ संगति में होना चाहता हूँ, यीशु से सीखना चाहता हूँ, तो मुझे उसके जैसा होना सीखना है। And even if you read one verse in Corinthians 11, when Paul says, "Be imitators of me, just as I also am of Christ." और हम भी जैसा पहला कुरिन्थियों 11 उसके पहले वचन में पढ़ते हैं कि जैसे पौलुस कहता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। Paul also he imitated Christ. He wanted to be like Christ. और पौलुस भी यीशु के पीछे चलता था, वो यीशु जैसा बनना चाहता था। In Ephesians 5 verse 1 and 2. और इफिसियों 5 उसके पहले 2 वचन। It says, "Therefore be imitators of God as beloved children, and walk in love, just as Christ also loved you and gave himself up for us, offering a sacrifice to God as a fragrant aroma." इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। Same thing is saying, be imitators of God, imitators of Christ, to learn from Christ, to live like Christ. और यहाँ भी वही लिखा है कि परमेश्वर का अनुकरण करने वाले, यीशु का अनुकरण करने वाले बनना है, जैसे हम उसके जैसा जीना सीखते हैं। So it's that every day when I live, I said I should really, I come to a place where I think I should judge myself like, God, am I really following you? Am I living? And if I'm not, I should really repent and go back. God, help me, Lord, to walk this way, walk your way. और प्रतिदिन जब मैं जीता हूं, मुझे अपने आप को जांच कर देखना है, परखना है कि प्रभु क्या मैं इस तरह से चल रहा हूं, और अगर नहीं चल रहा तो मुझे जाकर मन फिराना है कि प्रभु तू मेरी सहायता कर कि मैं ऐसा चलूं। So God has promised the Holy Spirit, where He said the Spirit will help us. He help us remember what Christ has spoken to us. और परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा का वायदा दिया है कि वो हमारी सहायता करेगा, हमें याद दिलाएगा जो यीशु ने कहा। He will help us to be like Christ. सॉरी ब्रदर, He will help us to be like Christ.
वो हमारी सहायता करेगा कि हम मसीह जैसे बने। It's main thing is it's all in my heart. Do I really want to follow? Do I really और want to be there? और मुख्य बात है मेरे हृदय में, क्या मैं सचमुच उसके पीछे चलना चाहता हूँ, क्या मैं सचमुच उसके जैसा बनना चाहता हूँ। 1 John chapter 2 and verse 6 says, the one who says he abides in him ought himself to walk in the same manner as he walked. और पहला यूहन्ना 2:6 में लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। Like everywhere, this thing is when I have to be like Christ, have that thing. I always like that word. Like this word where say we are earthen vessels to carry the glory of God. I really pray God, help Lord that to be that humble human, that earthen vessel. और मुझे भी वो वचन बहुत पसंद है जहाँ लिखा है कि हम मिट्टी के बर्तन है, और मैं कहता हूँ कि प्रभु तू भी मेरी सहायता कर कि मैं उस नम्र बर्तन के समान बना रहूं। No, it's that one that earthen vessel doesn't have any importance. It can break, but the real thing is that earthen vessel is carrying the glory of Christ. और Immediately, वो जो मिट्टी का बर्तन है उसके अपने आप में कोई महत्व नहीं है, वो टूट सकता है, पर महत्वपूर्ण ये है कि उसके अंदर यीशु की महिमा होनी चाहिए। it's when I should walk, when I live, when I'm in my workplace or in my home or anywhere, church, anywhere. It's one place, but people can really say, Christ did a work in Santosh. It's not Santosh who walked his way out, but Christ did a work in Santosh. और मैं जहाँ जीता हूँ, मेरे काम करने की जगह कहीं भी लोग ये कह पाने चाहिए कि यीशु ने संतोष के अंदर एक काम किया है। So it's many times we see like when somebody says something about you, it's so nice. Like somebody said good about me, but when I really sit and see, it's not about me, but it's God who has done a work in me. And that's made that thing come out. और कभी-कभी अगर कोई हमारी तारीफ करता है तो हमें अच्छा लगता है, पर अगर हम बैठकर देखें तो प्रभु ने हमारे अंदर काम किया है, इसी वजह से वो अच्छी बात हमसे बाहर आई। May God really help us to really live like Him, walk with Him. और परमेश्वर सचमुच हमारी सहायता करे कि हम उसके जैसे जिए, उसके जैसे चले। That we may really live in this true spirit. कि हम उस सच्ची आत्मा में जिए। That we may really live this life to please Him and glorify His name. और हम इस जीवन को जिए जहां हम उसको प्रसन्न करते हैं और उसके नाम को महिमा लाते हैं। Thank you. परमेश्वर का धन्यवाद है। इस हफ्ते में मरकुस उसके 8वें अध्याय 34 वचन से आगे पढ़ रहा था कि यीशु उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उससे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। और मैं इस वचन को पढ़कर मैं देख रहा था कि यीशु सबको ये कहता है, उस भीड़ को भी और चेलों को भी, मतलब जो पहले से उसके पीछे चल रहे थे उनसे भी यीशु यही कहता है कि तुम अगर मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप से इनकार करना और अपना क्रूस उठाना होगा और फिर मेरे पीछे आना होगा। और मैं जैसे ही मैंने पढ़ा, मैं सोच रहा था कि अच्छा, ये एक और बात है जो मुझे करनी है, मुझे अपना क्रूस उठाना है, मुझे अपने आप से आपका इनकार करना है। और मुझे वो पढ़कर ऐसा बड़ा बोझ लग रहा था कि ये बहुत कठिन है। क्यों? ये मतलब प्लेजेंट नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो अच्छी है। या और अचानक मुझे 2 हफ्ते पहले जो एक मैसेज भाई संदीप पुनर ने दिया था, उसमें एक बात मुझे याद आई कि कुछ बातें हमें उसका महत्व नहीं हम देख पाते, क्योंकि हमने यीशु मसीह को अब तक हमारा हीरो नहीं बनाया है। वो कह रहे थे कि यीशु मसीह जब हमारा हीरो होगा तब हम देखेंगे कि ये उसका जीवन है और उसके जीवन में उसने ये सब किया, इसलिए वो हमसे कहता है। और मैं भी यही सोच रहा था कि यीशु ये इस वजह से नहीं कह, मतलब ये ऐसा कुछ नहीं था कि जो यीशु ने आज्ञा दी है, जैसे अभी भाई संतोष भी कह रहे थे कि यीशु ने पहले इसी मार्ग से वो चला, वो अपने जीवन को उस समय तक इसी प्रकार चलता रहा और फिर वो कहता है कि तुम्हें ये करना है। तो जब मैं इस आज्ञा को पढ़ता हूँ कि वो मेरे लिए केवल एक बोझ बनती है, क्योंकि मैं ये नहीं देख पाता हूँ कि ये यीशु की महिमा है। और जैसे अंकल भी आज बता रहे थे कि उसमें उसके पीछे एक यीशु के जीवन की महिमा है। और क्योंकि यीशु मेरे लिए बड़ा मेरा हीरो नहीं बना है, इसलिए मैं उसको देख नहीं पाता, मेरे अंदर वो लालसा नहीं आती कि मुझे भी ऐसा बनना है। जैसे मुझे जैसे कुछ चीजें पसंद है, मुझे सिखाने का शौक है, तो मैं कई बार जब
यूट्यूब पर कुछ टीचर्स को देखता हूँ, तो मैं उनको देखते ही मेरे दिल से एक लालसा आती है कि काश कभी मैं भी ऐसे पढ़ा पाऊँ, काश मैं चीजों को इतना आसान करके किसी को बता पाऊँ। और वो मेरे लिए बड़ी आसान होती है, शायद उसको करने के पीछे बहुत मेहनत लगती होगी, पर मेरे हृदय से एक लालसा आती है कि हाँ, मुझे भी ऐसा सिखाना है, मुझे भी ऐसा करना है। और मैं वही सोच रहा था कि मैं कई बार यीशु के उस महिमा को नहीं देखता कि यीशु ऐसे ऐसे जिया है, और जब मैं उसकी महिमा को देखूंगा तो फिर मेरे लिए ये बड़ा आसान होगा कि मैं भी अपने क्रूज को उठाऊं। तो आज जो कुछ मैंने सुना, मैं उससे सचमुच बहुत प्रोत्साहित हुआ और चुनौती पाया हूं। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आने वाले दिनों में और अधिक मैं यीशु के अपना इनकार करना और क्रूज उठाने के महिमा को देख पाऊं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जैसे आज अबू बदर ने शेयर किया था, ये वचन मेरे लिए बहुत सालों से बहुत एंकरेज था, अपने आप को इनकार करना। ये वचन से मेरे जीवन से मैं गवाही देना चाहती हूँ। बहुत सारी चीजों में प्रभु ने सहायता की। डिनायर सेल्फ बहुत सारा एंकरेज है हर चीजों में। ये प्रतिदिन का एक काम है जो मैंने मेरे जीवन में सीखा, जिसे अबू बदर ने बताया। और ये एक प्रभु के साथ में एक रिलेशन भी है जो एक प्यार को दर्शाता है। जैसे सुबह में उठ के प्रार्थना करना कि हर दिन का एक चुनाव है हमारा कि सोए का इच्छा करना है या प्रभु को प्रसन्न करना। तो जब मैंने प्रार्थना किया कई साल पहले, मुझे प्रभु ने सहायता की इस चीजों में कि अपने आप को इनकार करना। तो मैंने मेरे जीवन में देखा कि मेरा मैरिज लाइफ, बच्चों को संभालने में प्रभु ने बहुत सहायता की हर बातों में। पहले ऐसे नहीं था, पहले जैसे कुछ कहा तो वाद विवाद होना। तो मैंने देखा मेरे जीवन में कि जब दीना ऐसा ये अपने आप को इनकार करना, ये मेरे लिए ये वचन मेरे लिए एक जीने के लिए एक रास्ता बन गया प्रभु के साथ में। तो इस वचन से मुझे एंकरेज होता है। मार्कुस का 14 अध्याय के 35 में फिर वो थोड़े आगे बढ़ और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए, और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से टाल दे, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, जो तू चाहता है वही हो। फिर वो आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे सिमोन, तू सो रहा है क्या? तू एक घड़ी भी ना जाग सका? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। ये वचन से मुझे एंकरेज हुआ कि कई बार मैंने देखा कि आत्मा तो हमेशा यही चाहता है कि प्रभु को प्रसन्न करना, लेकिन शरीर हमेशा ये चाहता है कि अपने सोए की इच्छा करना। ये एंकरेज है हर एक क्षण के लिए, मेरे जीवन में। तो प्रभु ने सहायता किया कि जितना हम लोग अपने आप को इनकार करेंगे, उतना हम प्रभु के लिए एक बच्चों के लिए, एक मैरिज लाइफ के लिए एक एग्जाम्पल बन सकते हैं। तो मेरे लिए बहुत एक एंकरेज था। और ये था एक प्यार से जुड़ा है, जो प्रभु के साथ हमारा एक गहरा रिलेशन है। उस चीज में अपने आप को इनकार करने के लिए तकलीफ नहीं होगा। जब हम प्रभु के जितना नजदीक जाएंगे, उसकी गहराई, उनका प्यार हम देख पाएंगे कि उन्होंने कैसे अपने आप को डिनाई किया, हमेशा अपने आप को इनकार किया ताकि वो प्रभु के साथ जुड़े रहे। तो ये चीज मुझे बहुत एंकरेज किया हर समय। ये हर दिन का है, और ये जब से मैंने मेरे जीवन में लागू किया, मेरा जीवन बहुत आशीषदायक हुआ, और प्रभु के साथ उतना ही गहराई। और भी मैं प्रभु का प्यार को देखना चाहती हूँ आने वाले दिनों में, कि और कितना गहराई है उनके प्यार में, जो उन्होंने अपने आप को इतना तक आधीन किया कि वो मृत्यु के लिए भी वो ऐसे आगे ऐसे लिखा है कि हे अब्बा, हे पिता, से सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से टाल दे, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वैसा हो। ये वर्ड बहुत एंकरेज है मेरे लिए कि प्रभु चाहता है कि जैसे मैं नहीं, जैसे आप चाहते हैं वैसा हो। तो ये प्रभु का ये गहरा प्यार है प्रभु के साथ में, इससे मुझे हमेशा एंकरेज होता है। थैंक यू। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक वचन से जो मैं बहुत ही प्रोत्साहित हुआ और मैं चुनौती पाया, मैंने लास्ट वीक में, वो था भजन संहिता उसका 47, उसका 4 वचन, साम्स 47 वर्स 4। वहाँ लिखा है कि वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा, जो उसके प्रिय याकूब के घमंड का कारण है। और इस वचन से मुझे बहुत ही चुनौती मिली कि कई बार मेरे जीवन में अपने आप को मैं जांच पा रहा था कि एक परमेश्वर के पीछे चलने के लिए या उसका सच्चा डिसाइपल या उसका चेला बनने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि मैं वहाँ पर हर जगह पर परमेश्वर को मेरे जीवन के हर एक एरियाज में, हर एक क्षेत्र के अंदर चुनाव करने के लिए उसको मैं अनुमति दूँ। बहुत
आसान होता है कहने के लिए, लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर मैं देख पाया कि मेरे अंदर एक प्रलोभन या एक ऐसी टेंडेंसी है कि जहां पर मैं उस चुनाव को करना चाहता हूँ या मैं अपनी बुद्धि समझ का सहारा लेना चाहता हूँ, लेकिन एक सही जो मसीह का शिष्य होगा वो हर एक परिस्थिति के अंदर, चाहे वो उसके जीवन से जुड़े हुए सांसारिक निर्णय भी क्यों ना हो, उन सारी बातों में परमेश्वर को आगे करके अनुमति देगा कि उस भाग का चुनाव। अब्राहम और लूत के बारे में हम जानते हैं कि अब्राहम ने लूत को चुनाव करने दिया क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर उसका भाग है। और यही बात मैं अपने जीवन के अंदर करना चाहता हूँ। पिछले दिनों में मैं और मेरी पत्नी किसी निर्णय को लेने में हम लोग लेट होकर, कुछ चीज़ें हमारे हाथ से निकल गई या कुछ चीज़ें में हम लेट होकर, हमें थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा था कि काश में थोड़ा जल्दी हो हम लोग निर्णय लेते या उस चीज़ को जैसे हाथ से छूट गई है, ऐसा कुछ फील हो रहा था। बट फिर मुझे बाद में याद आया कि मैं क्यों, अधूरापन मेरे अंदर आ रहा है, क्यों मेरे अंदर एक 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 ऐसे इम्पेशंस हो रहा है कि क्यों वो मैंने जाने दिया, क्यों मैंने ऐसा किया। लेकिन प्रभु ने इस बात को याद दिलाया, वो परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन के बारे में हर बात को चुनता है, उसके निर्णय को लेता है। और इस बात से, इस वचन से मुझे बहुत ही प्रोत्साहित मिला कि मेरे अंदर जो प्रलोभन है कि मैं इस वचन को पढ़ने के बाद भी मैं हर चीज को करना चाहता हूँ, और उसका उत्तर मुझे उसके पहले अध्याय के अंदर वहां पर मिलता है, जो भजन संहिता 46 उसका अंतिम वचन में लिखा गया है। वहां लिखा है कि चुप, भजन संहिता उसका 46 उसका वचन 10 में, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। और मैं अपने जीवन में इस बात को सीखना चाहता हूँ और बढ़ते कदम पर कि प्रभु, मैं हर जगह जहां पर मुझे चुनाव करने का आता है कि प्रभु, जहां पर भी प्रभु मुझे चुनाव करना है, प्रभु मैं वहां पर अपने आप में, अपनी समझ में, अपनी बुद्धि में चुप होना चाहता हूँ, शांत होना चाहता हूँ कि जहां पर मुझे लगता है कि ये सही है, मुझे लगता है कि मेरे हाथ से ये छीन ना जाए या मेरा चुनाव सही होना चाहिए, प्रभु उन जगह पर न्यूट्रल होकर प्रभु मैं इस वचन को मेरे जीवन में लागू करना चाहता हूँ कि मैं चुप रहना चाहता हूँ। प्रभु ये बहुत ही अधिक कठिन है मेरे लिए कि जब मुझे पता है कि ये मुझे करना है या नहीं करना है, पर प्रभु मैं अपनी समझ का सहारा वहां नहीं लेना चाहता हूँ। और मैं जानना चाहता हूँ कि परमेश्वर ही महान है, उसका चुनाव भले मुझे, मेरे लिए वो नुकसान लगता हो, वर्तमान हालत में लगता हो कि चीजें छूट गई है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ही फायदे कारक और मेरे लिए भलाई के लिए होगा। जब मैं मुझे याद आता है मेरे विवाह के लिए, जब मैं प्रार्थना कर रहा था और जब मैं शादी के लिए सोच रहा था, तो मैं बहुत आतुरता से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु यही व्यक्ति से मुझे शादी करनी है, प्रभु इसी के लिए मुझे बहुत अधूरापन मेरे अंदर, जैसे कि मैं बहुत ही इम्पेशंस होकर प्रभु से मांग रहा हूँ। एक प्रभु के जन ने मुझे यही बताया कि उस पक्षी को हाथ में रखकर तू प्रार्थना मत कर कि प्रभु ये पक्षी मुझे दे दे, बट उसको तू उड़ा दो और फिर तुम प्रार्थना करो, प्रभु यदि तेरी इच्छा में ये पक्षी मेरे लिए है तो तू उसको मेरे जीवन में लेकर आएगा। और उस बात ने मुझे एक नई समझ दिया कि प्रभु चाहता है कि हम हमारी समझ के अंदर पहले चुप और शांत हो जाए, पूरी तरह से हम अपने आप को समर्पित करें, और फिर परमेश्वर हमारे लिए जो चुनाव करेगा उसके लिए हम पूरी तरह से आजाद या एक्सेप्ट करेंगे उसको। और परमेश्वर जो भी हमारे लिए चुनाव करेगा, चाहे वो हमारे लिए नुकसान लगता होगा, लेकिन उसमें हम पूरी तरह से शांत रहेंगे, उसको स्वीकार करेंगे और प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। हमारा आनंद, हमारा विश्राम कभी भी उसके अंदर बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा। हम बिना हिले उस परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद करेंगे। और इस जरूरत को मैं देखता हूँ कि प्रभु मेरी सहायता करे, हम सबों की सहायता करे कि हम उन हालातों में जहां पर प्रभु चुनाव करना चाहता है हमारे लिए, हम उस एरिया के अंदर अपने आप को चुप करे या शांत करे अपनी समझ में। मैं धन्यवाद देता हूँ आज के वचन के लिए। आज के वचन से जो मुझे रिवीजन हुआ वो ऐसा है कि जब मैं मसीह में आया था शुरुआत में, और जिस चर्च से मैं जुड़ा था, और वहाँ किसी के हिसाब से जब 4-5 साल मुझे चर्च में हो गए थे, तो हमेशा मुझे ये लग रहा था कि मैं परमेश्वर में कुछ बढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ आगे, मैं कुछ उन्नति क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मैं दूसरे भाइयों को और बहनों को देखता था हमेशा, वो मतलब वो प्रार्थना करने में बहुत अच्छे थे और परमेश्वर के वचनों में भी बहुत वो मंडली में अच्छे रहते थे, पर मैं अपने जीवन को हमेशा देखता था कि मैं इन भाइयों और इन बहनों के जैसा क्यों परमेश्वर के वचनों में और प्रार्थना में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। और कहीं न कहीं मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं चर्च में आता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ, पर वचनों में मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ। और हमेशा मैं अपने आप को कंडेम करता रहता था अंदर ही अंदर। मुझे लगता था मैं हर चीज़ रेगुलर करता हूँ, पर मुझे अंदर से ऐसा क्यों नहीं लगता है कि मैं परमेश्वर में आगे बढ़ पा रहा हूँ या मुझे कुछ परमेश्वर से मिल रहा है। और जब जैक ब्रदर और सीएफसी के मैसेज मैं सुनने लगा,
तो तब मुझे समझ में आई ये बात कि मतलब जो जगीक दुनिया में जो सब लोग करते हैं उस चीज को हम परमेश्वर में आगे बढ़ना नहीं कहेंगे। हम जैसे कि अबू अंकल ने अभी बताया, वचन बताता है कि अपने आप को शून्य करना बहुत जरूरी है, अपना क्रूस अपने ऊपर उठाना, अपने आप को मारना बहुत जरूरी है। और तब हम उस जीवन को बोल सकते हैं कि हाँ, हम अब परमेश्वर में आगे बढ़ने की हमने शुरुआत की है। जब ये वचन मुझे मिले और तब मुझे प्रोत्साहन मिला उन वचन से कि नहीं, परमेश्वर मेरा हाथ पकड़ के मुझे आगे लेके जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मैं उस बच्चे के समान हूँ जिसकी उंगली को परमेश्वर ने पकड़े वाला है और वो आगे उस रास्ते पे लेके जा रहा है। तो इस रिवीजन के लिए और दोबारा से इस वचन को मेरे जीवन में मैंने सुनने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। Thank God for the message and the sharing that we heard. प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं संदेश के लिए और जो शेयरिंग हमने सुना उसके लिए। That verse that we heard, that Jesus said, if anyone wishes to come after me, he must deny himself, take up his cross daily and follow me. जैसे उस वचन में सुना, जो मेरे पीछे आना चाहता है, यीशु ने कहा कि वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। So if I stop at taking my cross daily, that is not what Jesus said. और यदि मैं अपना प्रतिदिन जो क्रूस उठाना है उससे मैं अंदर रुक जाता हूं, तो यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा वहां। It is to, after taking up my cross, I need to follow him constantly. और उस क्रूस को उठाकर मुझे बाद में क्या करना है? मुझे निरंतर उसके पीछे चलना है, उसका अनुसरण करना है। Denying myself is not the end in itself. और अपने आप का इनकार करना वो स्वयं में ही अंत नहीं है। वहां पे there is something beyond it. It is so that the life of Jesus will be manifested in my life. और उसके आगे भी कुछ है जहां पर यीशु मसीह का जीवन मेरे जीवन के अंदर प्रस्तुत होगा। In some provoking situation, I might keep quiet about it, but inside I might be boiling. और बहुत सारी उस्काए जाने की परिस्थिति के अंदर शायद मैं वहां पर चुप रहूंगा, लेकिन मेरे भीतर एक उलझन सी, या मैं अंदर से बहुत ही मैं अंदर से बदले की भावना मेरे अंदर हो सकती है। But what Jesus did is, as we heard one thing, that he humbled himself. Jesus always humbled himself. और एक चीज जो यीशु मसीह ने निरंतर किया वो है कि उसने अपने आप को नम्र किया। And that is another way of saying he took up his cross. He humbled himself. He came down. और वो पूरे अपने आप को नीचे करता है और नम्र करता है। ये अपने आप को दूसरी तरह से उस क्रूस उठाने का दूसरा अर्थ है। He surrendered himself to his Father completely. उसने अपने पिता को पूरी तरह से अपने आप को समर्पित किया। We need to pray that prayer, Lord, I surrender myself to you. I humble myself, Lord. प्रभु, हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु मैं अपने आप को तुझे समर्पित करता हूँ, मैं अपने आप को विनम्र करता हूँ। And whenever a situation comes where I feel like I want to, a thought of pride or anything to give back comes, Lord, I want to humble there. I want to humble myself. और जहाँ कई परिस्थितियों में प्रभु, जहाँ घमंड भरी बातें या जहाँ पर मैं बदला लेना चाहता हूँ, प्रभु उन परिस्थितियों में अपने आप को मैं नम्र करना चाहता हूँ। When we heard about that verse in Galatians about I have been crucified with Christ. और जैसे गलातियों की पत्री में हमने देखा कि जहाँ पौलुस कहते हैं कि मैं अब मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूँ। There it is written, I have been with Christ. I am with. It is not alone. Me and Christ are crucified. I have been crucified with Christ. When Christ was crucified, I was crucified with him. और मैं अकेला ही वहां पर क्रूसित नहीं हुआ, लेकिन मैं यीशु मसीह के साथ, मतलब जब यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर क्रूसित हुआ तब मैं भी उसके साथ था। So that means it is Christ who does the work in me. और इसका मतलब ये है कि वो मसीह है जो मुझ में वो कार्य करता है। While I surrender my will to him, Jesus will reveal himself in my life. और जब मैं अपनी इच्छा को उसे समर्पण करता हूं तो वो परमेश्वर यीशु मसीह अपने जीवन को, उसकी इच्छा मेरे जीवन पर प्रकट करता है। It is not I trying with my own strength and gritting my teeth. और ये ऐसा नहीं कि मैं अपने ही प्रयत्नों से बहुत ही प्रयास या कड़ी मेहनत करता हूँ, दांत पीस कर बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ, ऐसा नहीं है। He just wants me to surrender myself completely, just like John said, I might decrease that he might increase in me. और वो चाहता है कि हम पूरी तरह से उसको अपने आप को समर्पित कर दे, जैसे यूहन्ना कहता है कि अवश्य है कि वो बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। As much as humble myself all the time, Christ's life will come in me more and more. और जितना अधिक मैं अपने आप को प्रतिदिन नम्र करता जाऊंगा उतना ही अधिक मसीह का जीवन मेरे अंदर आते जाएगा। Let that desire, let that prayer always be in my heart, that Lord, I want to humble myself so that
Christ can be revealed through my life. और यही प्रार्थना इच्छा हमारे मन में हो कि प्रभु मैं और अधिक अपने आप को नम्र बनना चाहता हूँ प्रभु, ताकि मसीह यीशु मुझ में प्रभु दिख सके। And then as we heard, it is not that others will see how great that I am a great person, but it is what Christ has done in him, that glory will belong to Christ. और इस कार्य के बाद ऐसा नहीं होगा कि सब लोग मुझे कहेंगे कि कितना महान, लेकिन वो सारी महिमा जो है वो केवल मसीह यीशु को ही मिलेगी। That when others see me, it is Christ who is seen in me, not me done something, but Christ who has done a work in my life. और जो और लोग जो मेरे जीवन को देखते हैं, तब मैं नहीं लेकिन मुझ में जो यीशु मसीह का कार्य हुआ उसे वो देखने पाए। That the fragrance of Christ is coming out of me. ताकि मसीह की सुगंध मेरे जीवन से निकलने पाए। So what will happen is there will be that what comes out will be life and joy and peace. और ताकि मुझ में से जो बाहर आएगा वो जीवन होगा, वो आनंद और शांति होगा। Only the Holy Spirit can help us to do this. We cannot do it on our own strength. और हम अपने स्वयं के बल पर इस बात को नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा ही हमें वो मदद दे सकता है। We can pray that Lord, you fill me with the Holy Spirit while I humble myself. Lord, fill me with the Holy Spirit. और हम ये प्रार्थना करें कि प्रभु जब मैं अपने आप को नम्र करता हूँ तो पवित्र आत्मा तू मुझे अपने आप से भर दे। Make this life of Jesus true in me. और यीशु मसीह का जीवन मेरे जीवन में वास्तविक या सच होने दे। And as it's a daily thing, Lord, I want to, Lord, humble myself and ask you to live in me all the time. और ये प्रतिदिन मेरे जीवन के अंदर होने पर मैं मांगता हूँ कि प्रभु तू प्रतिदिन मेरे जीवन के अंदर जिए। May God help us to live this life by His grace. और प्रभु हमारी सहायता करे कि उसके अनुग्रह के द्वारा हम इस जीवन को जी सके।